हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो लाइव विद टीम अरोरा। हम हर फ्राइडे आपके साथ जुड़ते हैं रियल एस्टेट की हॉट टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम उस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं जहां से रियल एस्टेट की शुरुआत होती है, जो कि है हमारा लैंड। तो हमारा टॉपिक है आज का लैंड सिंडिकेशन एंड लैंड डेवलपमेंट। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं हमारे ब्रोकर सैम ढिलन जी, और हमारे साथ हमारी प्रीकॉन स्पेशलिस्ट जगजीत जी। वेलकम टू द शो गाइस। मेरी तरफ से भी आप सबको नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। जैसा कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं हर जुमे को, तो आज भी कोशिश करेंगे कि एक मालूमात से भरपूर प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। थैंक यू सो मच सैम जी। सैम जी, जैसे कि हम हर बारी बात करते हैं बहुत सारे घरों की, कमर्शियल प्रॉपर्टीज की, बट आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है लैंड के बारे में। जी, अगर लैंड नहीं होगा तो बिल्डर घर कहाँ बनाएगा और कमर्शियल प्रॉपर्टी कहाँ बनाएगा। बट हमारे बहुत सारे दर्शक हमें मैसेज करते रहते हैं कि लैंड की जो बाइंग सेलिंग होती है, जी, कभी उसके बारे में भी हमें डिटेल में बताएं। बिल्कुल। तो सैम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किस किस टाइप के लैंड होते हैं और कैसे इनकी बाइंग और सेलिंग वर्क करती है, क्या प्रोसेस रहता है इसका। डेफिनेटली। जतिन, इंग्लिश की एक कहावत है कि यू कैन टेक अ बॉय आउट ऑफ द विलेज, बट यू कैन नेवर टेक विलेज आउट ऑफ द बॉय, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਬਾਏ ਕਰਨ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀਏ, ਖਾਕ ਉਜੇੜ ਨਾ ਕੋਏ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਕਿ ਖਾਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਦਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, यानी कि पवन यानी कि एयर, वो गुरु है। पवन गुरु, पानी पिता, जड़ा पानी है वो साडा पिता है, और धरती जिहड़ी है वो साडी माता है। सो ये ਅਸੀਂ देख सकते हैं कि सानू विरसे च ये गल मिली है कि जमीन जिहड़ी है वो साडे लई बड़ी इंपॉर्टेंट है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਡ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰॉ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਲੈਂਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰॉ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਸੀਜ਼ਨ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼, ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਤੇ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਔਰ ਭੁੱਲ ਗਏ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਸਰੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਡਿਫਿਕਲਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 20% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ 80% ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇਚਣਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, unless it's a prime development land ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੌਟ ਕੇਕ ਵਾਂਗ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੈਂਡ ਸਿੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰਸਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 200 ਏਕੜ ਦਾ ਪਾਰਸਲ ਹੈ ਲੈਂਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦਾ, 5 7 10 20 ਜਣੇ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਉਸ ਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਪਾਏ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਸਲ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਯੂਜੂਅਲੀ ਬੈਂਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਲੈਂਡ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਸ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਰ ਸ਼ੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਰਸਿਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਹਾਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਂਡ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਦਾ ਸੈਲਰ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਵੈਂਡਰ ਟੇਕ ਬੈਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 50% ਜਾਂ 40% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਡੀਲ ਟੂ ਡੀਲ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਦੇ ਓਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਵੇਚੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਆਫ ਲੈਂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯੂਜਲੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰੋਡਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਗੈਸ ਲਾਈਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਲਾਈਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੂਏਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਯੂਜਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਵੈਲਪਡ ਲੈਂਡ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਪਰੂਵਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰमेशन ਸੀਗੀ अपने दर्शकों वास्ते। जी थैंक यू सो मच सैम जी, बहुत ही इंफॉर्मेशनल आपने इंफॉर्मेशन जो हमसे शेयर करी है। ये मोस्टली दर्शकों को नहीं पता होता कि लैंड किस किस टाइप के होते हैं, कैसे जोनिंग चेंज हो सकती है और कैसे सिंडिकेशन वर्क करता है। हम लैंड के बारे में और बहुत सारी बातें करेंगे, बट आपसे मिलते हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, लाइव विद टीम अरोड़ा एट आवाज टीवी। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828 0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, बहुत आला चाय, आला चूरो चाय. Chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी, और थिक कोई कड़क चाय थी. Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ऑफर था 2024 का for देसी बाइकर्स of Canada. Chai Social sponsored. We want to thank the team of Chai Social. Absolutely great experience, great kadak chai. Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Thank you Everybody so loved it. We appreciate your support, and hopefully we can count on you in the future.
डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई, जराइम में बेहद इजाफा, घरों की आसमान को छूती कीमतें, स्कूल में छोटे बच्चों की फौहश सेक्स एजुकेशन। ऐसा क्यों? कौन जिम्मेदार? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या दोनों? इन जैसे मसाइल के हल के लिए 2020 में मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राणा ने सेंट्रिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी। सेंट्रिस्ट पार्टी हम सबकी आवाज है। आप भी सेंट्रिस्ट पार्टी में शामिल होकर हमारा साथ दें। मजीद तफसीलात के लिए centristcanada.ca विजिट करें। Hello, Erin Mills. This is Sharif Sabawi, your Ontario PC candidate for Mississauga Erin Mills. The future of Ontario in your hands. So why wait? You can vote early now at South Common Centre Mall. Voting is open until February 26th, Monday to Saturday from 10 a.m. to 8 p.m. and Sundays from 12 p.m. to 5 p.m. All you have to do is go down there, write my name, Sharif Sabawi, and you can do your part in protecting Ontario. Every vote counts in protecting Ontario's economy, jobs, and future. Let's secure a better future. Vote early, vote Sabawi. Back to our show live with Team Aurora. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और ब्रेक से पहले हम सैम जी ने जैसे बताया कि कनाडा में हम लैंड बाइंग और डेवलपमेंट और सिंडिकेशन कैसे वर्क करता है, तो अब हम लैंड का एक और नजरिए से देखते हैं, बिल्डर्स के नजरिए से। जब जीत हमारे बहुत सारे आप रिनोन्ड बिल्डर्स के साथ काम करते हैं, तो जब जीत थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे लैंड वो बाय करते हैं और क्या उनका प्रोसेस रहता है कि कब वो डेवलपमेंट स्टेज पे आते हैं और हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, घर बनते हैं, तो उसके थोड़ा प्रोसेस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें आप। सो जतिन, हम ये कह सकते हैं जो बिल्डर्स हैं जो मोस्टली जो आजकल डेवलप कर रहे हैं लैंड, ये जनरेशनल लैंड होता है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर किसी के ग्रैंडफादर ने लैंड बाय करा हो बहुत साल पहले, देन अब आगे जाके उनका बेटा वो लैंड डेवलप करेगा एंड आगे फिर उनका ग्रैंडसन आके फाइनली उस पर फिनिश प्रोडक्ट जैसे कोई बिल्डिंग या लो राइज प्रोजेक्ट फाइनली उस पर बिल्ड होएगा। सो जो बड़े बिल्डर्स हैं ये अपना लैंड अबाउट 20 to 25 ईयर्स एटलीस्ट होल्ड करते हैं बिफोर कि वो बिल्ड करें। एंड सबसे बड़ा एग्जांपल जो हम देख सकते हैं, आपने कॉमनली सुना होगा एमसीटी प्रोजेक्ट। एंड मे बी आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में ये ना पता हो कि जो रॉजर्स है उसने वो लैंड 50 ईयर्स पहले बाय करा था, व्हिच इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड अगर उन्होंने यही लैंड आज बाय करना हो मिसिसागा में, वो भी अबाउट 50 acres फॉर एग्जांपल, देन दैट वुड बी इन बिलियंस। वो एक लाइक पॉसिबल नहीं है, वो चीज बहुत टफ हो जाती है। एक जैसे जब जीत ने कहा कि बिल्डर्स जो है ना वो लैंड बैंकिंग करते हैं, जैसे मैंने टच किया था थोड़ा सा ये टॉपिक के, आपने लैंड बाय करके भूल गए कि आपने लैंड वो है अभी एग्जिस्ट भी करती है,
तो 20-25-50 साल, अब ये एमसीटी वाला जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था वो रॉजर्स ने 50 साल पहले बाय की थी लैंड। अब उन्होंने सिर्फ लैंड में ही जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट बना दिया। तो बिल्डर्स यूजुअली यही करते हैं। अब आप देखेंगे कि कैलेडन में मैटमी ने thousands and thousands of acres जो है लैंड ऑलरेडी बाय की हुई है काफी देर पहले की, और अब आप देखेंगे कि आने वाले कुछ सालों में जो है वो कैलेडन में अपनी सब डिविजन्स जो हैं वो शुरू करेंगे। तो बिल्डर्स हमेशा जो है अनलेस कोई ऐसी मतलब लोकेशन है जो क्योंकि अभी पीछे मैंने एक देखी थी डील के 1 एकड़ लैंड टोरंटो में, आप अंदाजा लगाओ कि क्या कीमत हो सकती है जतिन 1 एकड़ लैंड की टोरंटो सिटी में, डाउनटाउन टोरंटो। मिलियंस, लाइक 20-30 मिलियन, 275 मिलियन, 275 मिलियन, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। यस, लेकिन अब वो बिल्डर ने बाय की है, डेवलपर ने बाय की है, और वो 275 मिलियन का जो लैंड है उसके ऊपर वो मैनी बिलियंस के जो है टावर खड़े करके और उसमें से पैसा बनाएगा। That's amazing. तो सब कुछ जो है वो जैसे आपने शुरू में कहा कि लैंड से ही शुरू होता है। जी, तो मेरे ख्याल से हमारे पास काफी सारी लैंड की लिस्टिंग्स भी हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, क्यों ना हम अपने देखने वालों के साथ शेयर करें उनको। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक था लैंड डेवलपमेंट का, तो हम भी आपके लिए बहुत ही अच्छी एक लैंड की लिस्टिंग लेके आए हैं। क्रेडिट वैली ब्रैम्पटन में बहुत ही प्रेस्टिजियस नेबरहुड और बहुत ही प्राइम लोकेशन पे हमारे पास 9461 क्रेडिट व्यू रोड पे 1 एकड़ लैंड का पार्सल है, जहाँ पे डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो कोई भी अगर किसी का विजन है, जैसे कि हमने बात करी मिलियंस बिलियंस का प्रोजेक्ट बनाने का, तो हमारे को वो कांटेक्ट कर सकते हैं इस लैंड के लिए। जो अगली लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए, एक बहुत ही अच्छी डील 58 स्काई हार्बर ड्राइव यूनिट 417। ये बहुत ही न्यूअर कॉन्डो है 1 बेडरूम का, और हमने इसको इतने अट्रैक्टिव प्राइस पे लगाया है। जो सेलर्स हैं अनफॉर्चुनेटली दे आर लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस, बट जो बायर है वो बहुत ही अच्छी एक डील ग्रैब कर सकता है। 58 स्काई हार्बर ड्राइव 1 बेडरूम 1 बाथरूम कॉन्डो यूनिट। इसकी जानकारी के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो हमारी अगली लिस्टिंग है वो है 165 वेटरन्स ड्राइव यूनिट 5 इन ब्रैम्पटन। सैम जी अगर आप बताएं। जी, ये भी एक टाउन हाउस है, कॉन्डो टाउन हाउस, 2 बेडरूम एंड 2 वॉशरूम, जो वेटरन्स ड्राइव और सैंडलवुड के इंटरसेक्शन पे है। माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन यहाँ से बिल्कुल पास है। अगर आप कम्यूट करते हैं और या आप टोरंटो में रहते हैं रेंट पे, तो जितने पैसे आप रेंट में दे रहे हैं मंथली, तकरीबन उतने में ही आपकी ये जो है मॉर्गेज पे हो जाएगी इस यूनिट की, और साथ में आपकी इक्विटी भी बिल्ट होगी। आप जब रेंट पे कर रहे होते हैं तो आप किसी और की मॉर्गेज पे कर रहे हैं। इसमें आप थोड़ी सी डाउन पेमेंट देके अपनी मॉर्गेज पे करनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई हमारे फर्स्ट टाइम होम बायर्स फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल परफेक्ट फिट है 109 फिनिगन सर्कल इन ब्रैम्पटन। ये भी माउंट प्लेजेंट गो के साथ नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन के वॉनलेस एंड मिसिसागा रोड के इंटरसेक्शन पे एक फ्री होल्ड 2 स्टोरी टाउन हाउस है। अगर कोई भी दर्शक इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। जो हमारी अगली लिस्टिंग है वो है 8 कवाना रोड इन ब्रैम्पटन। ये जो नेक्स्ट लिस्टिंग है हमारी 8 कवाना रोड, ये बिल्कुल ब्रैम्पटन मिसिसागा के बॉर्डर में है एट मिसिसागा एंड स्टील्स। एक एग्जीक्यूटिव टाउन होम है 4+1 बेडरूम फिनिश बेसमेंट एंड इट्स अ मस्ट सी प्रॉपर्टी। एंड इधर हम वीकेंड पे ओपन हाउस भी लगा रहे हैं 1:30 to 4, सो कॉल अस इफ यू वांट टू हैव अ लुक। जो हमारी नेक्स्ट लिस्टिंग है वो है 65 समर वैली ड्राइव। 65 समर वैली ड्राइव स्नेल ग्रूव के बहुत ही प्रीमियम नेबरहुड के अंदर एक डिटैच डबल गैराज
घर है, ये एक रवीन लॉट है और दिस इज लाइक एक्चुअल रवीन। आप बर्ड्स को, डियर को अपने बैकयार्ड के अंदर देख सकते हैं। बहुत ही लंबा इसका ड्राइवे है और हमारे क्लाइंट्स ने बहुत ही सारे पैसे इसकी रेनोवेशंस के ऊपर स्पेंड करे हैं। जो लास्ट घर हमने इस यहाँ पे लिस्ट किया था वो 5 ही दिनों में फुल प्राइस पे बिक गया था और ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई स्नेल ग्रूव के एरिया में घर देख रहा है, 65 समर वैली इज अ वेरी गुड ऑप्शन। और ये बिल्कुल कह सकते हैं हम कि कैलेडन और ब्रैम्पटन का बॉर्डर है बिल्कुल, और मेफील्ड एंड हाईवे 10 का इंटरसेक्शन है स्नेल ग्रोव के अंदर, और सारी अमेनिटीज वहां पे हैं बिल्कुल प्लाजा के बिल्कुल साथ, और ये घर लोकेटेड है। जो अगली हमारी लिस्टिंग है वो है 10799 15th साइड रोड इन हॉल्टन हिल्स। यस, तो अगर आप कोई प्रॉपर्टीज देख रहे हो जिसमें काफ़ी लैंड भी मिले आपको साथ में अलॉन्ग विद अ लिवेबल होम, तो ये प्रॉपर्टी है 10799 15th साइड रोड इन हॉल्टन हिल्स, जॉर्ज टाउन हॉस्पिटल के बिल्कुल नज़दीक। एंड इधर आपको 4.2 एकर्स ऑफ लैंड मिल रहा है घर के साथ। एंड इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 100 चेस्टवुड ट्रेल। एंड ये जो प्रॉपर्टी है मिसिसागा से सिर्फ 30 मिनट्स दूर है, एंड उसके साथ आपको ओवर 8 एकर्स ऑफ लैंड भी मिल रहा है। ओके, ये यस कस्टम बिल्ट हाउस इन अ कोर्ट, इट्स नियर द एंड ऑफ द कोर्ट, एंड इसमें ओवर 6600 स्क्वायर फीट ऑफ लिविंग एरिया भी है। सो ब्यूटीफुल होम। एंड दोनों दिन हम इधर ओपन हाउस कर रहे हैं, सैटरडे संडे 1:30 to 4। Give us a call if you'd like to have a look. जो इस लिस्टिंग की खास बात है जब जीत के यूजुअली जो इस टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको रिमोट एरिया में, रूरल एरिया में मिलती हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी की खासियत ये है कि ये एक सब डिवीजन में है। वहाँ पे सारे घर जो हैं वो कस्टम बिल्ट हैं और तकरीबन इसी साइज के उनके लॉट्स हैं, जैसे 7 एकड़ किसी का हो गया, किसी का 10 एकड़ हो गया, किसी का 5 एकड़ हो गया। तो आपको जो सिटी वाली फील है वो तो है ही है कि आप एक कम्युनिटी में रह रहे हैं, लेकिन साथ में आपको जो रूरल फीलिंग है वो भी है, और आपको नेचर जो है इट्स इन योर बैकयार्ड। या एब्सोल्युटली। एंड हाईवे 6 बिल्कुल पास है आपके, लाइक अ 1 minute ड्राइव टू हाईवे 6। And Highway 401 जो अपना major highway है, of course, connects you to east to west of GTA, वो भी just a few minutes away. Yeah. Thank you so much Sam and जगजीत जी। तो हम जाते जाते अपने दर्शकों से एक कुछ आप उनको सजेशन या कुछ आपको टिप देना चाहेंगे, कहीं जो हमारे दर्शक जो एक लंबा विजन रखते हैं, जो लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लैंड डेवलपमेंट में अगर वो इंटरेस्टेड हो, तो उनके लिए सैम जी कोई? बिल्कुल जतिन, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो हम गांव से आए हुए लोग हैं, हमारी हमेशा ही ये एक इच्छा होती है, ये चाहत होती है कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा जमीन जरूर खरीदें कनाडा में। तो अगर आपके भी मन में ये उथल पुथल चल रही है, आपको सिर्फ करना क्या है कि एक फोन कॉल हमें करनी है 416-910-8923 पे, और आपने हमारे साथ बैठ के इसके जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो हम बिल्कुल अपनी नॉलेज के मुताबिक आपको एक अच्छा रोड मैप दे सकते हैं कि किस तरह से आप लैंड ओनरशिप की तरफ बढ़ सकते हैं। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा पैसा कहीं बना है तो वो लैंड में ही बना है, रियल स्टेट में ही बना है। ये एक जो है वेल्थ जनरेशन टूल भी है, और साथ में आप अपना जो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि यू कैन टेक अ बॉय आउट ऑफ द विलेज बट यू कैन नेवर टेक द विलेज आउट ऑफ द बॉय। तो वो आपकी जो इच्छा है, वो जो आपकी मंशा है, वो भी पूरी हो जाएगी, और आपको हम सही मानों में गाइड करके, या आपके पास कोई ऑलरेडी आप ओन करते हैं लैंड और आप ये जानना चाहते हैं कि इसका बेस्ट यूज क्या हो सकता है, उसकी भी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास है। अलग अलग सिटीज के अलग अलग रूल्स हैं, तो वो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली हमारे साथ आप अपॉइंटमेंट सेट करें और हमारे साथ चाय का कप पिएं, और साथ में ही आपकी
जो लैंड पार्सल है या जो आपका डेवलपमेंट का कोई प्लान है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। नंबर हमारा एक बार फिर 4169108923। थैंक यू सो मच सैम जी। मैं अपने गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि वो आज हमारे साथ शो पे जुड़े। थैंक यू जगजीत जी, थैंक यू सैम जी, और हमारे दर्शकों का भी। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे लाइव विद टीम अरोड़ा, ओनली ऑन आवाज टीवी। थैंक यू।